weekly webinar cum training session of Rajlakshmi Solutions Private Limited. On behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome all the attendees here. I'm Anagha representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today we are going to talk about credit sales and cash flow management in Tally Prime. So before moving ahead to the today's topic, let's take a small introduction of Rajlakshmi Solutions. So we are into multiple segments, that is sales, services, solutions, implementations and developments. We are also into the multiple softwares, that is Tally Prime, SAP B1, Bittrex 24 CRM and Skill India. So moving ahead with the today's topic. So the speakers are here now. The presentation will be conducted by Miss Sonali. So Sonali, are you here? Yes, ma'am. Okay, and the live demonstration will be done by Mr. Aniket. So Aniket, are you here? Yes, ma'am. Okay, and the resource person, Mr. Bhagwati Dandaria. Sir, are you here? Yes, I am available. Thank you. A hearty welcome all of you. So I request Sonali and Aniket to move ahead with your presentation. Hello. Good evening, everyone. Myself, Sonali, representing on behalf of Rajalakshmi Solutions Private Limited. Hello. Good evening, everyone. Myself, Sonali, representing on behalf of Rajalakshmi Solutions Private Limited, on behalf of the management and the entire team of Rajalakshmi Solutions. I would like to welcome all the participants present here. So moving ahead to our today's topic is credit and cash flow management in Tally Prime. Receivable and payable management. Receivables. When you do sales on credit, you would certainly need to keep track of the due amounts that your parties owe you. All such dues from your parties will be your outstanding receivables. अगर हम कोई भी सेल्स अगर क्रेडिट थ्रू करते हैं तो यहाँ पे मेंटेन करना जरूरी है कि जो भी हमने सेल्स ऑन क्रेडिट के थ्रू किया है तो वो ड्यू अमाउंट जो है हमारा पार्टीज का वो हमारा ट्रैकिंग यहाँ पे होना चाहिए। जब भी ये ट्रैक होता है ना तो हमें यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल का जो भी रिपोर्ट से टैली प्राइम से मिल जाता है। वैसे ही सेकेंड है पेबल्स। When you make some purchases or obtain services from your vendors, you need to keep track of the all payments that you have to make within the due dates. All such pending payments to your parties are outstanding payables. Payables में when you make मीन्स क्या है, अगर हम कोई भी परचेसेस या वेंडर के थ्रू कुछ सर्विस लेते हैं तो यहाँ पे हमारा जो पेमेंट ट्रैकिंग होता है, जो भी हमें विद इन ड्यू डेट दिया जाता है वो ड्यू डेट में हमें पेमेंट रिलीज करना जरूरी होता है। जब हम यहाँ पे ट्रैक करते हैं ना तो हमें यहाँ पे आउटस्टैंडिंग पेबल्स का रिपोर्ट टैली प्राइम में से मिल जाता है। सेकेंड है एजिंग एनालिसिस। स्टॉक एजिंग एनालिसिस in Tally Prime displays the age of the stock in hand. This report lists the age-wise breakup of inventory to Demartech old stock. Tally Prime gives it is the users the flexibility to define their own aging slabs. स्टॉक एजिंग एनालिसिस टैली प्राइम में हमें एक स्टॉक एजिंग एनालिसिस का फंक्शन दिया गया है। इससे हम हमारा जो स्टॉक है, हमारे स्टॉक में हमारा ओल्ड जो स्टॉक है, ओल्ड स्टॉक का रिपोर्ट हम एज वाइज ब्रेकअप थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे अगर एजिंग स्लैब अगर डिफाइन किया है तो वो हम फ्लेक्सिबिलिटी लेवल पे यहाँ पे देख सकते हैं। द एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट प्रोड्यूस अ डिफॉल्ट एजिंग पीरियड ऑफ above 45 days, 45 to 90 days, 90 to 180 days, 180 days. You can define the aging slab depending on the requirement. एजिंग एनालिसिस का जो रिपोर्ट्स होता है तो हमें डिफॉल्ट टैली में उसका पीरियड दिया गया है, हम वो पीरियड वाइज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं अपना जो रिक्वायरमेंट है, उस थ्रू हम हमारा एजिंग स्लैब यहाँ पे निकाल सकते हैं। इन टैली प्राइम In Tally Prime, the aging analysis can be applied on ledger or groups outstandings and bill receivables and payables.
टैली प्राइम में एजिंग एनालिसिस हम अप्लाई कर सकते हैं लेजर एंड ग्रुप थ्रू। उनका आउटस्टैंडिंग एंड बिल्स रिसीवेबल एंड पेबल्स का रिपोर्ट यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कैश एंड फंड फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट summarize the flow of cash into and out of your business over a period of time। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे बिजनेस का जो भी कैश इनटू एंड आउट होता है वो फ्लो हम पीरियड वाइज समराइज कर सकते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट shows the inflow and outflow of funds for a particular period। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमारे बिजनेस का हमारे बिजनेस में जो भी फंड होता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो थ्रू, तो वो हम पर्टिकुलर पीरियड वाइज यहाँ पे स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। मल्टीपल बिल्स सेटलमेंट। Using bill settlement option in Tally Prime, you have a faster method to clear a party's bulk payments for multiple pending bills together। मल्टीपल बिल सेटलमेंट का ऑप्शन हम टैली प्राइम में यूज करके कोई भी पार्टी का अगर यहाँ पे हमें आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट जो है मल्टीपल पेंडिंग जो भी हमारे बिल्स रहते हैं वो हम एक ही स्क्रीन लेवल पे मल्टीपल बिल सेटलमेंट वाइज निकाल सकते हैं। Next, credit control utility. To ensure better credit management, you can set maximum credit limit based on the credibility of the customer. You will also be notified through an alert during a sales invoice if your customer has any overdues। क्रेडिट लिमिट एक ऐसा मैनेजमेंट है टैली में जो भी कस्टमर्स को हम अगर क्रेडिट लिमिट डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे वो कस्टमर के अगेंस्ट हमारा जो भी सेल इनवाइस रेस होता है तो सेल इनवाइस रेस करने के बाद यहाँ पे हमें मेंशन हो जाता है, अलर्ट करता है कि अगर वो कस्टमर का कुछ आउटस्टैंडिंग बिल पहले का है तो यहाँ पे हमें डिफाइंड होता है क्रेडिट लिमिट थ्रू। सेकेंड है हमारा पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेटर्स। Payment performance of debtors is the average time the customers take to pay their bills, irrespective of the outstanding balance on the statement date। It is possible that the receivable turnover is low and the payment performance is high, indicating that the customers cleared their outstanding but took a long time to do it। पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेटर्स, ये रिपोर्ट्स में हमें क्या पता चलता है जो भी कस्टमर के साथ हमारा जो ट्रांजैक्शन हुआ है और ट्रांजैक्शन करते वक्त हमें अगर कुछ ड्यू डेट वहां पे डिफाइन किया है वो ड्यू डेट के अगेंस्ट हमारा पेमेंट कितने दिन के अंदर आया है या वो ड्यू डेट के बाद कितने दिन के बाद हमारा वो पेमेंट रिसीव हुआ है, ये रिपोर्ट्स हमें यहाँ पे देखना है। तो ये पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेटर्स में हम देख सकते हैं। मीन्स इसके थ्रू ऐसे पता चलता है कि कस्टमर का परफॉर्मेंस कैसा है, ये हम ये रिपोर्ट में देख सकते हैं। सो it is thank you. Now it is time for the live demonstration. I request Aniket to proceed ahead for the live demonstrations. Thank you. Thank you, Sonali madam. That was a nice presentation from your side. So, hello everyone. Good evening. My name is Aniket, presenting from Raj Lakshmi Solutions Private Limited. So, is my screen is visible, ma'am? Yes, it's visible. Yes, it's visible. तो आज हम टैली में देखने वाले हैं जितने भी हमारे क्रेडिट पर जितने ट्रांजेक्शन होते हैं, सेल परचेज, तो वो हम टैली में कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम कस्टमर को एक पर्टिकुलर क्रेडिट पे सेल करके उनको प्रॉपरली क्रेडिट मैनेज कर सकते हैं और उनको टाइम टू टाइम रिमाइंड हम दे सकते हैं। उसका हम प्रैक्टिकल यहाँ पे टैली में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए हमें एक टैली में एक फीचर दिया गया है, उसको इनेबल करना जरूरी है। हम यहाँ पे सबसे पहले F11 क्लिक करना है। F11 में यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखता है इनेबल बिल वाइज एंट्री, इसे हमें यस करना जरूरी है। तो यस करने के बाद हमें इसको सेव कर देते हैं। जैसे हम उसको यस करते हैं, जब हम कोई भी लेजर क्रिएट करते हैं वहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखता है, लेजर में हम जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एपेक्स प्राइवेट लिमिटेड हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इनेबल किया है तो ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखेगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, तो इसे हमें यस कर देना है ताकि हमें जो भी बिल हम सेल परचेज बिल जितने हम बना रहे हैं वो बिल टू बिल हम ट्रैकिंग रख सकें। नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड।
जैसे फॉर एग्जांपल इस कस्टमर के लिए हम जो सेल कर रहे हैं इस कस्टमर को, उसको हमें कितने दिन का क्रेडिट पीरियड देना है, जिस टाइम पीरियड में हम उनसे हमें पेमेंट लेना है, जो हम कस्टमर को दिखा सकते हैं। तो वो हमें यहाँ पे टाइम पीरियड डेट्स हमें यहाँ पे डालने हैं। जैसे हम किसी कस्टमर को 30 डेज का ड्यू डेट हम देते हैं बिल फ्रॉम बिल डेट, तो वो हम यहाँ पे डेज हमें मेंशन करना है। नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट, वो हम यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे जो भी हमें क्रेडिट लिमिट डालनी है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। इससे एक्चुअली क्या होगा, जिस भी कस्टमर को हम क्रेडिट पर सेल करते हैं, तो अगर उस कस्टमर का उससे पहले वाला कोई भी बिल अगर पेंडिंग होगा, जिसका अमाउंट अगर 10,000 क्रॉस होता है, जो कि उसकी क्रेडिट लिमिट है, तो उसका नेक्स्ट सेल बिल नहीं बनेगा। तो जो कि हमारे आउटस्टैंडिंग के लिए अननेसेसरी जिसकी आउटस्टैंडिंग भी नहीं बढ़ेंगी, तो उसके लिए भी हम ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसका मैं आपको प्रैक्टिकली को भी आता है, जब हम एंट्री पास करते हैं, अगर उसकी ड्यू डेट क्रॉस होती है, क्रेडिट लिमिट क्रॉस होती है, तो वो भी हम यहाँ पे आगे देखने वाले हैं। स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट का यहाँ पे अगर आपको आपके स्क्रीन पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे F12 में इसे इनेबल करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है F12 में प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट का, इसे हमें इनेबल करके रखना है। नेक्स्ट हम इसको सेव कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्रेडिट लिमिट सेट कर दी है 10,000 की। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस पार्टी का हमने अभी तक कितना बिल हमने बनाया है, कितना उसका क्रेडिट लिमिट यूज हुआ है। डिस्प्ले में यहाँ पे अकाउंट्स बुक, यहाँ पे लेजर, एपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, इनका टोटल क्रेडिट लिमिट यूज हुआ है 9,558। तो 9,558 यूज हुआ है। अभी हमने क्रेडिट लिमिट सेट किया था 10,000 का। अभी हम वाउचर्स में आते हैं। अभी सेम पार्टी का हम अगर बिल बनाते हैं और वो बिल की अमाउंट अगर 10,000 क्रॉस हो जाती है, तो उसका बिल यहाँ पे नहीं बनता है, वो आपको यहाँ पे ऑप्शन पॉपअप दिखा देता है। मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी ले लेता हूँ। अभी इसका 1,200 हो रहा है, तो ये 10 उसका जो क्रेडिट लिमिट जितना यूज हुआ है 9,500 और प्लस से 1,200, तो ये 10,000 रुपीज क्रॉस हो रहा है। तो जब हम इसको बिल को सेव करेंगे, तो यहाँ पे हमें एक पॉपअप दिखाई देता है क्रेडिट लिमिट का। क्रेडिट लिमिट ऑफ एपेक्स प्राइवेट लिमिटेड 10,000 एक्सीडेड, मतलब इस पार्टी का 10,000 जो क्रेडिट लिमिट हमने सेट किया था, वो अभी एक्सीड हो गया है। सबसे पहले हमें इसका बिल बुक करने के लिए जो पहले बिल पेंडिंग है, उसको हमें सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा। इसके लिए इसकी मदद से, इस पॉपअप की मदद से, क्रेडिट लिमिट की मदद से हम कस्टमर को इन्फॉर्म भी कर सकते हैं कि आपके पहले बिल पेंडिंग है, तो अभी ये बिल यहाँ पे नहीं बन रहा है। या फिर अगर आप पेमेंट उनका नहीं करना चाह रहे, तो यहाँ पे आपको उसकी क्रेडिट लिमिट भी आप इंक्रीज कर सकते हैं मैनुअली, बात अल्टर कर। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग क्रेडिट लिमिट का। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं ड्यू डेट का। ड्यू डेट का हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले प्रकाश एंटरप्राइजेस, हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेल्स आइटम सेलेक्ट कर दें, यहाँ पे CGST और उस पे लगता है SGST। यहाँ पे जो भी हम एंट्री पास कर रहे हैं, उसका जो हमने पार्टी में ड्यू डेज डाला है 30 डेज 10 डेज 40 डेज, जो भी हमने डेज डाले हैं, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डेज आ जाएंगे। अगर आप इसको चेंज भी करना चाहते हैं, तो आप यहीं पे एंट्री में भी उसको चेंज कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे जब हम ड्यू डेज डालते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इसे हमें यस कर देना है, ताकि हम जब एंट्री करते हैं तो हम जितने डेज देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं। और इसको यहाँ पे सेव कर देना है। नेक्स्ट हम आते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। जो इतना हमने क्रेडिट डेज का लिमिट दिया है, तो उसके बेसिस पर अगर हमें उनका पेमेंट या फिर रिसिप्ट नहीं आता है, तो उसका रिपोर्ट हमें देखना है कि पर्टिकुलर बिल का कितना ड्यू डेट्स कितने हुए हैं, उसका बिल डेट कौन सा था,
और उनसे कितना अभी पेमेंट रिसीव करना है या फिर पे करना है हमें, तो उसका हमें यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट होता है, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हमें आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का एक ऑप्शन दिया गया है। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे, हमारे सामने रिसीवेबल, पेएबल और लेजर वाइज भी रिपोर्ट ओपन होती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं रिसीवेबल। यहाँ पे हमें दिखता है जिस भी पार्टी से हमें पेमेंट रिसीव करना पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, तो वो बिल हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल प्रकाश एंटरप्राइजेस है यहाँ पे। तो प्रकाश एंटरप्राइजेस का ये जो बिल है, ये 1 मई को इसका ड्यू डेट है। तो अभी तक इसका ड्यू हुआ नहीं है, करंट डेट अभी 1 मई 23 है, तो इसलिए यहाँ पे ओवरड्यू डेज 0 है। लेकिन अगर हम यहाँ पे हमारी करंट डेट को कंसिडर करते हैं 15 मई, सॉरी 31 में हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे हमें दिख जाता है 30 डेज यहाँ पे ओवरड्यू हो गया है, ओवरड्यू बाय डेज। सेम सेकंड बिल का भी हम यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं। ये हमें रिसीवेबल का यहाँ पे रिपोर्ट दिख रहा है। सेम हम पेएबल का भी यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं, तो कितना पेमेंट हमें करना अभी बाकी है पार्टी को। पार्टी 1 से हमने परचेस किया था, यहाँ पे एंटर करने के बाद हमें डिटेल में दिख जाता है कि हमने ये जो पेमेंट करना है ये किस चीज का करना पेंडिंग है अभी तक। तो ये 22,666 का पेमेंट अभी इनका करना बाकी है। इसका भी ड्यू डेट है 1 में। ये हम बिल वाइज हम यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक रिपोर्ट आता है लेजर वाइज रिपोर्ट। लेजर वाइज अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं एपेक्स प्राइवेट लिमिटेड का। एपेक्स प्राइवेट लिमिटेड के 2 यहाँ पे बिल आउटस्टैंडिंग में दिख रहे हैं, मतलब इतना हमें पेमेंट इस पार्टी से रिसीव करना बाकी है अभी तक तो इससे अगर हमें इसकी भी रिसिप्ट करनी है यहीं पे, तो यहाँ से भी हम डायरेक्टली हम रिसिप्ट कर सकते हैं, ताकि यहीं से डायरेक्टली हम उसका आउटस्टैंडिंग क्लियर कर सके। उसके लिए यहाँ पे हम ऑप्शन दिया गया है टैली में सेटल बिल का, ताकि हमें अलग से जाकर रिसिप्ट की एंट्री पास ना करनी पड़े। यहीं पे हम डायरेक्टली उसके रिसिप्ट बैकएंड में यहाँ पे रिसिप्ट पास हो जाती है और यहीं से वो बिल क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जस्ट वाउचर डेट डालनी है, रिसिप्ट हमें जिस दिन आ रही है वो डेट डालनी है। यहाँ पे लेना है बैंक या फिर कैश, जो हमारी रिसिप्ट मेथड होंगी, और यहाँ पे नरेशन डाल देना है। और इसको सेव कर देना है। तो हमारी क्या होंगी, बैकएंड में एक रिसिप्ट की एंट्री पास होगी। इसको हमें एज इट इज सेव कर देना है। फिर ये बिल जो हमें आउटस्टैंडिंग में दिख रहा था वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसे हमें सेलेक्ट करके यहाँ पे सेटल बिल कर सकते हैं। इस तरीके से मल्टीपल बिल, अगर एक पार्टी के मल्टीपल बिल अगर आउटस्टैंडिंग में दिख रहे हैं, तो सभी बिल्स के हम एक ही एंट्री में सभी बिल्स को हम एक ही एंट्री में क्लियर कर सकते हैं फॉर विद द यूजिंग ऑफ सेटल बिल ऑप्शन। सेम तरीके से हम ग्रुप वाइज भी रिपोर्ट देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग का। सेंटर क्रेडिटर, यहाँ पे क्रेडिटर हमारा एक क्रेडिटर यहाँ पे दिख रहा है पार्टी 1। यहाँ पे डेटर वाइज भी हम रिपोर्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं कैश फ्लो का। कैश फ्लो रिपोर्ट्स में हमारी कंपनी में टोटल इनफ्लो कैश कितना हुआ है, तो मतलब टोटल कंपनी में कैश कितना आया है और कितना कैश कंपनी से अब तक गया है, तो उसका एक ओवरऑल रिपोर्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। मंथ वाइज भी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है अप्रैल मंथ में हमारा इनफ्लो हुआ था 6608। जैसे हम इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पे करंट एसेट में हमें दिख जाता है कितना जो कैश हमें आया था कंपनी में, तो कौन से पार्टी से आया था, कब आया था। जैसे जैसे हम एंटर करते रहते हैं तो हम यहाँ पे डिटेल में वो रिपोर्ट देख सकते हैं। सेम यहाँ पे हम यहाँ पे आउटफ्लो का भी देख सकते हैं। मई मंथ में यहाँ पे इनफ्लो भी है, आउटफ्लो भी है। तो जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें डिटेल में रिपोर्ट हम देख सकते हैं। ये पेमेंट की एंट्री था, तो ये आउटफ्लो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे फंड फ्लो रिपोर्ट। फंड फ्लो रिपोर्ट में सेम हम यहाँ पे जितना क्लोजिंग बैलेंस है कंपनी का, अभी क्लोजिंग जो बच रहा है, तो उसका ओपनिंग क्लोजिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं।
और उसका ओवरऑल नेट जो फंड फ्लो होता है वो भी हम यहाँ पे रिपोर्ट में देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको F12 करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखता है शो एवरेज का। इसको यस करने के बाद हमारे पास सामने एक यहाँ पे ग्रैंड टोटल के नीचे एक लाइन आ जाती है जिसमें हमें एक एवरेज ओपनिंग क्लोजिंग का यहाँ पे वैल्यू देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक रिपोर्ट आती है पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेटर। तो सबसे पहले उसको देखने के लिए हमें यहाँ पे जाना है रेशियो एनालिसिस में। रेशियो एनालिसिस में यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है रिसीव टर्नओवर इन डेज। यहाँ पे ब्रैकेट में हमें दिखाई दे रहा है पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेटर। जैसे ही हम इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पे जिस कस्टमर्स का जो पेमेंट जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं कस्टमर्स के साथ, जितना हम उनको क्रेडिट पर सेल करते हैं या फिर रिसीव करते हैं, तो उनके ड्यू डेट के हिसाब से उनके पेमेंट के हिसाब से उनका परफॉर्मेंस कैसे होता है, तो वो ओवरऑल परफॉर्मेंस हम यहाँ पे इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम रिपोर्ट देखते हैं एपेक्स प्राइवेट लिमिटेड का। तो इसका जैसे हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उसका जो बिल था वो क्या 11 मई को ड्यू हो रहा था, तो उसने पेमेंट किया है 1 मई को, मतलब उसने 10 डेज पहले ही पेमेंट कर दिया है। तो इस तरीके से ओवरऑल हमें परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। इसका भी सेम 11 अप्रैल को इसका ड्यू डेट था, तो इसने पेमेंट किया है 2 अप्रैल में। 9 डेज पहले इसने पेमेंट हमें किया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डेटर रिपोर्ट देख सकते हैं, परफॉर्मेंस देख सकते हैं कस्टमर्स का। सो इस तरीके से हम यहाँ पे ओवरऑल क्रेडिट कंट्रोल एंड कैश फ्लो यहाँ पे हम रिपोर्ट देख सकते हैं और क्रेडिट कंट्रोल मैनेज कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। Thank you, Sonali and Aniket, for your presentation. So it's a time for overview of the today's session. So it's over to you, sir, Bhagwati sir. Yeah, thank you, team. Thank you, Anga. So, as we discussed about the credit control, and credit control is a very important part in any of the organization to run the business smoothly. क्योंकि अगर फंड नहीं है, फंड राइट डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट नहीं है, फंड का यूटिलाइजेशन सही नहीं हो रहा है, सो अल्टीमेटली यू आर लूजिंग द बिजनेस, यू आर गेटिंग द लॉस। सो इन सभी चीज़ों के लिए मैनेज करने के लिए टैली प्राइम ने इतने अच्छे ढंग से स्मूथली उसने हर एक पैरामीटर्स पर उन्होंने हर एक जगह कहीं ना कहीं अलार्म आपको दे दिया है। लाइक मैं बात करूं कि एक कस्टमर को हमें किसी को एक कैपेसिटी होती है उसके टर्नओवर की, ट्रांजैक्शंस के ऊपर एवरी कंपनी हैव ए डिफरेंट पैरामीटर्स की। आज एक कस्टमर मुझे 12 मंथ में अगर 10 लाख का ट्रांजैक्शन करता है तो मैं 30 डेज की क्रेडिट देता हूं, तो मेरा एवरेज मुझे 70-80,000 उसके यहाँ बाकी होना चाहिए। अगर मैं उसको 15 डेज का क्रेडिट देता हूं तो मेरा 1,60,000 एवरेज बाकी होना चाहिए। इसके बेस पे मैं उसको क्रेडिट लिमिट दूंगा, तो मेरा ऑपरेटर उससे ऊपर का बिल ही नहीं बना पाएगा। अगर उससे ऊपर का ऑर्डर अगर होगा तो वो उससे कस्टमर से बात करके एडवांस मंगाएगा, देन दे कैन जनरेट अ बिल। सो ओवरऑल आइडिया इज कि जहां पर क्रेडिट हमें एक पर्टिकुलर पार्टी को एक लिमिटेशंस के साथ में देनी है, तो एवरी टाइम बिजनेस ओनर कान इन्वॉल्व इन दिस डेटा, ओके। एंड वो डेटा में जब बिजनेस ओनर इन्वॉल्व नहीं हो सकता तो बट नेचुरल उसको ऑपरेशन लोगों के हाथ में देने होते हैं विद ऑल द लिमिटेशंस। सो ये सभी इसको पर्टिकुलर को आप यहाँ क्रेडिट कंट्रोल के थ्रू मैनेज कर पाते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि बताया गया कि आपके आउटस्टैंडिंग किस हिसाब से चल रहे हैं, आपके रिसीवेबल क्या चल रहे हैं, आपके पेबल का क्या सिचुएशन है, आपके फंड का क्या सिचुएशन है, आपके स्टॉक की क्या पोजीशन है, स्टॉक की एजिंग क्या है। ये जो मल्टीपल सोर्सेज हैं, वो मल्टीपल सोर्सेज से आप अपने फंड फ्लो को पूरा मैनेज कर सकते हैं और क्रेडिट कंट्रोल को पूरी तरीके से स्मूथली रन कर सकते हैं, जहां पर टैली प्राइम आपको कंप्लीट हेल्प करेगा। और इन सभी हेल्प में अगर आपको कहीं भी लगता है कि अगर आपको कोई भी सपोर्ट अगर लग रहा है कि आपको कोई सपोर्ट चाहिए जो राजलक्ष्मी सॉल्यूशंस की तरफ से चाहिए, जहां आपको इम्प्लीमेंटेशन करने में चैलेंजेस हैं, जहां आपको एक क्रेडिट कंट्रोल करने में कई चैलेंजेस हैं, जिसके लिए आपके अकाउंट मैनेजर जिनके साथ आप कनेक्टेड है राजलक्ष्मी सॉल्यूशन है, उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, उनसे सपोर्ट ले सकते हैं जो आपको कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन में सपोर्ट करेंगे। इसके साथ में अगर आपको कोई डिस्कशन करना है या आपको कोई और एडवाइस लेना है
तो आप हमारी टीम के साथ आप मेरे नंबर पर भी डायरेक्टली फोन कर सकते हैं, जो कि हम आपको सजेशन देंगे कि हाउ यू कैन कंट्रोल ऑल दिस थिंग्स. एंड next I'm talking about the other things की like Raj Lakshmi में there is a multiple way of the multiple product lines है जहां पर आपके बिजनेस को स्मूथली रन किया जा सकता है. एग्जांपल, टैली में इतने फीचर्स है जिसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, यूटिलाइज कैसे किया जाए, उससे आपका ऑर्गेनाइजेशन का टाइम कैसे सेव किया जाए, आपके रिपीटेड वर्क को डुप्लीकेसी वर्क को कैसे कम किया जाए, इन सभी चीजों के लिए हमारे पास डिफरेंट प्लान्स है जिसके लिए आप डिस्कस कर सकते हैं. हमसे स्मूथ रन अपने बिजनेस को स्मूथ रन करने के लिए आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं और सपोर्ट. आप कंप्लीट पूरे होल ईयर्स यू कैन टेक द सपोर्ट थ्रू द एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लाइक दैट. सो ये इससे आप अपने बिजनेस को काफी स्मूथ रन कर पाएंगे. यू कैन मेक मोर एंड मोर प्रॉफिट इन योर ऑर्गेनाइजेशन. इसके अलावा बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा है जहां हमारे आप ही के लाइक कस्टमर्स डिस्कशन करते हैं कि उनके पास आज कस्टमर बेस की प्रॉब्लम्स है, कस्टमर नहीं है, प्रोस्पेक्ट नहीं है. दैट टाइम यू कैन आल्सो कनेक्ट विथ योर अस कि बिजनेस कैसे जनरेट किया जाए, प्रोस्पेक्ट कैसे जनरेट किया जाए, कस्टमर कैसे एक्वायर किया जाए. इन सभी चीजों को करने के लिए आप हमारे पास कनेक्ट कर सकते हैं जहां हमारे पास मल्टीपल टूल्स हैं लाइक CRM मार्केटिंग, कस्टमर को मैनेज करने के लिए कस्टमर प्रोफाइलिंग, कस्टमर डेटाबेस, कस्टमर के साथ फॉलोअप्स, कस्टमर के साथ इंटरेक्शन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सभी चीजों को करने के लिए भी हमारे पास कंप्लीट CRM सॉल्यूशंस है. इसके अलावा एफिशिएंसी मैनेज करने के लिए आपके लोगों की एफिशिएंसी, आपके प्रोडक्शन की एफिशिएंसी, आपके इन हाउस टीम की एफिशिएंसी, आपके various type of the peoples, various type of department, accounts department, admin and other things, उनकी एफिशिएंसी, उनके टारगेट्स एंड एवरीथिंग को मैनेज करने के लिए भी हमारे पास टूल्स है, टास्क एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. इन सभी चीजों के थ्रू आप अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा स्मूथ रन कर पाएंगे. इसके साथ साथ अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, आप ऑनलाइन यूज करना चाहते हैं सिस्टम को, आप डिफरेंट वे में मल्टीपल लोकेशन से आप अपने सिस्टम को यूज करना चाहते हैं, सो इस कंडीशन में आप कनेक्ट कर पाएंगे हमारे साथ, जहाँ टैली को आप क्लाउड पर भी ले सकते हैं. इसके साथ साथ आप SAP, हमारे पास एक अच्छा सॉल्यूशन है ERP, जहाँ आप ऑनलाइन SAP भी ले सकते हैं जिससे आपका बिजनेस स्मूथ चला सके आप. That's it from my side today. And guys, over to you. Thank you. Thank you so much, sir. So soon this session will be uploaded in the YouTube channel. So be connected to our social media to get the updates. Thank you everyone for joining the today's session. So now we'll wind up the session. Thank you.